Good morning, student. We are doing our chapter issue of shares, in which we have completed our topic oversubscription of share. In this video, we will discuss a new topic for feature of shares. I hope all of you understand the previous topic oversubscription of share. In this video, we are going to start a new topic for feature of share. For feature of share means cancellation of shares due to non-payment of allotment or call within the specified period. Listen, students, if any shareholder failed to pay the amount due on allotment or calls within the specified period, the director may cancel his shares. This cancellation is known as forfeiture of shares. It must be noted that shares can be forfeited only if the article of association of the company allow them to forfeit. In order to make the forfeiture valid, it is essential to follow the rules given in the article. If no rules are given in the article, then the provision of table F of Schedule 1 of Companies Act 2013 will be applied. The usual procedure is that the defaulting shareholder must be given a minimum 14 days notice regarding unpaid amount on his share together with accrued interest thereon. The notice must state that if the unpaid amount is not paid within the specified period, his shares be forfeited. If in spite of this notice the shareholder still doesn't pay the unpaid amount on his share, then his shares may be forfeited by a resolution of the board of directors. It is compulsion for the directors to follow the rules of article of association. After the forfeiture, the name of the shareholder is removed from the register of the members. The amount already paid by him belongs to the company and is not returned to him. यानी कि उसके शेयर्स फॉरफिट होने के बाद उसका नेम कंपनी के रजिस्टर में से, जो मेंबर्स का रजिस्टर बना हुआ है उसमें से उसको रिमूव कर दिया जाता है, और जो अमाउंट वो कंपनी को पे कर चुका है अपने शेयर से रिलेटेड, ये अमाउंट कंपनी कभी भी उसको रिटर्न नहीं करती. तो फॉरफीचर मीन्स कैंसलेशन ऑफ शेयर्स. तो इसमें कंपनी अपने शेयर्स को कैंसिल कर रही है, अपनी कैपिटल को डिक्रीज कर रही है. इशू करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होती है, फॉरफीचर वाले केस में कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है. नाउ वी डिस्कस द एंट्रीज ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. वी ऑलरेडी स्टडीड इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड एट प्रीमियम. तो फॉरफीचर भी दोनों सिचुएशन में होगा. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार and forfeiture of shares which were issued at premium. तो first case number 1, forfeiture of shares which were issued at par. उन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं जो एट पार पे इशू हुए थे. तो फॉरफीचर जर्नल एंट्री. लिसन, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है. जब फॉरफिट होते हैं तो कैपिटल डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने से डेबिट करेंगे, जितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, जितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, कि इनके ऊपर कंपनी ने कॉल कितना किया है, मांगा कितना है पैसा, जितना मांगा है उतने से ही डेबिट करेंगे. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट. आगे क्रेडिट, जो अमाउंट उसने पे नहीं किया उतने से हम क्रेडिट करेंगे. तो टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. टू शेयर कॉल, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन कॉल. जो पैसा नहीं आया वो क्लियर लिखना है. देखो बेटे, हम इशू के टाइम एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यू करने की. अब उसको हम कैंसिल कर रहे हैं तो बिल्कुल उसका रिवर्स करेंगे, यानी कि शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट अगर नहीं आई तो अलॉटमेंट को कैंसिल करना है, अगर आ चुका तो कैंसिल नहीं करना. 2 share allotment credit not received,
if not received on allotment, to share call amount not received on first call and to share forfeiture. जितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं उन शेयर्स पे जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका है वो अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, शेयर फॉरफीचर में, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स. लिसन, इफ कंपनी ओपन्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट, देन कॉल्स इन एरियर अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड ऑन द प्लेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल. यानी कि हम शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल्स की जगह पे फिर क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर. अगर कंपनी स्टार्टिंग में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करती है तो फिर टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल नहीं वर्ड लिखना, फिर हमने क्या लिखना है, कॉल्स इन एरियर. तो ये देखो क्लियर मैंने नोट भी दिया है. अब इसको हम एक एग्जांपल से अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. लिसन स्टूडेंट्स, शेयर्स 100 है, एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कॉल ₹2, on which first call money is not received from the shareholder. If shares are forfeited, the entry for the forfeiture of shares will be. तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, देखो फॉरफीचर मीन्स कैंसिल, शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट. कितने से डेबिट करना है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट. तो फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 100, और इनके ऊपर कॉल्ड अप कितना, कंपनी ने कितना कॉल किया है, कंपनी ने कितना मांगा है, कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक का मांगा है, फर्स्ट कॉल तक का कॉल किया है, तो कितना कॉल्ड अप बना टोटल, 3 एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का 5 एंड 2 फर्स्ट कॉल का 7. कंपनी ₹7 कॉल कर चुकी है, तो शेयर कैपिटल में ₹7 तक डेबिट होगा. तो 100 इंटू 7, 700. अब उसने जो अमाउंट पे नहीं किया, उसने क्या पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल, तो सिर्फ फर्स्ट कॉल लिखेंगे. अलॉटमेंट वो पे कर चुका है तो अलॉटमेंट को नहीं लिखना, जो पे नहीं किया वही लिखना है. फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 200, और जो अमाउंट वो पे कर चुका है वो सारा अमाउंट फॉरफीचर में चला जाएगा. वो क्या पे कर चुका है, एप्लीकेशन के पे कर चुका है और वो अलॉटमेंट के पे कर चुका है. तो 3 + 2 5, ये ₹5 वो पे कर चुका है, तो ₹5 कहाँ जाएगा, ₹100 के 100 शेयर्स के ऊपर फॉरफीचर में. तो टू शेयर फॉरफीचर 100 इंटू 5, 500. तो इस प्रकार हमारे फॉरफीचर की एंट्री इशूड एट पार वाले केस में क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट. नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 100 है, कॉल्ड अप अमाउंट 7 है, 700. जो अमाउंट उसने पे नहीं किया उसी का मेंशन करना है. टू शेयर फर्स्ट कॉल 200, और जो वो पे कर चुका है टू शेयर फॉरफीचर. यस स्टूडेंट, अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम. उन शेयर्स को फॉरफिट जो प्रीमियम पे इशू किए थे. तो देखो बेटा, एक चीज़ याद रखना, हम फॉरफीचर में बिल्कुल रिवर्स एंट्री पास करते हैं इशू से. इशू में जो अकाउंट डेबिट होता है फॉरफीचर में क्रेडिट करते हैं, और इशू में जो क्रेडिट होता है फॉरफीचर में डेबिट करते हैं. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इशू के टाइम क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो इसको डील करने के 2 केसेस हैं. दिस में बी डिस्कस्ड इन द 2 केसेस. प्रीमियम को डील करने के 2 मेथड्स हैं. नंबर 1, प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, और सेकंड केस है प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स. यानी कि जिन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं उनके ऊपर प्रीमियम का अमाउंट हमें मिल चुका है या नहीं मिला. 2 केस हैं, 2 सिचुएशन हो सकती हैं हमारे पास कि सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट फॉरफिटेड शेयर पे रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ. तो देखो पहला केस, अगर हमें रिसीव हो चुका है प्रीमियम कलेक्टेड, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर. अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है, प्रीमियम कंपनी कलेक्ट कर चुकी है, तो उसको हमने कैंसिल नहीं करना. हमने कैंसिल उसी चीज़ को करना है जो हमें पहले नहीं मिली, अब उनको कैंसिल करो. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिटेड शेयर पे हमें रिसीव हो चुका है, कंपनी को रिसीव हो चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कैंसिल नहीं करना. मींस हमने इशू के टाइम तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट होता है ना.
तो फॉरफीचर वाली एंट्री में हमने इसको डेबिट नहीं करना। मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड इन द एंट्री फॉर फॉरफीचर। तो फॉरफीचर वाली एंट्री में हमने इसको डेबिट नहीं करना। एक चीज़ और ध्यान से सुनो, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, यस रिसीव्ड, नॉट डेबिटेड इन फॉरफीचर एंट्री। हाँ तो नहीं, अगर मिल चुका है तो डेबिट नहीं करना। अब सेकंड केस, प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व become due not received by company, then security premium reserve account will be debited. Listen बेटे, इशू के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? क्रेडिट होता है। फॉरफीचर में हमने क्या करना है? उनको डेबिट करना है। तो देखो बेटे, अगर कंपनी ने ड्यू किया है लेकिन कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, मीन्स अब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? फॉरफीचर वाली अमाउंट, फॉरफीचर वाली एंट्री में इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड इन द एंट्री फॉर फॉरफीचर। तो फॉरफीचर वाली एंट्री में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे। देखो बेटे, एक चीज़ और हिंट देती हूँ, नो नॉट रिसीव्ड, नहीं मिला, यस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड इन फॉरफीचर एंट्री। तो देखो इसकी एंट्री क्या पास होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट, कंपनी ने कितना पैसा मांगा है लेकिन प्रीमियम को छोड़ के। कैपिटल में कैपिटल का अमाउंट आएगा, कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं आता। तो कॉल्ड अप अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अगर फॉरफिटेड शेयर्स पे प्रीमियम आ चुका है, कंपनी को रिसीव हो चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करना। अगर नहीं आया, नॉट रिसीव्ड, तो हमने डेबिट करना है फॉरफीचर वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। फिर आगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल सीनियर, और ये अलॉटमेंट वाला क्या आएगा? टोटल अमाउंट आएगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा। टू शेयर फॉरफीचर, यानी कि फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाता है? जितना अमाउंट शेयर होल्डर से कंपनी को रिसीव हो चुका है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। लिसन स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल शेयर्स 100, एप्लीकेशन ₹3.50, अलॉटमेंट 6.50, उसमें वो कहता है ₹4 प्रीमियम है। अगर 6.50 में ₹4 प्रीमियम है तो कैपिटल का अमाउंट कितना बचा? 2.50, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2, ऑन विच द शेयर होल्डर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो उस शेयर होल्डर ने अपनी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं की, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या बनेगी? लेसन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। तो फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? 100 है, और कॉल्ड अप कितना है? लिसन बेटे, कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं जाता, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप कितना है? कंपनी फुल अमाउंट कॉल कर चुकी है, फाइनल कॉल तक पूरा पैसा मांग चुकी है, तो फुली कॉल्ड अप है, बट कैपिटल में कभी भी प्रीमियम का अमाउंट नहीं जाता। तो कितना है? 3.50 प्लस 2.50 6 प्लस ₹2 फर्स्ट कॉल के 8 और ₹2 फाइनल कॉल के 10, तो 100 इंटू 10 1000। अब बेटे देखो, अलॉटमेंट पे नहीं की ना, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो फॉरफीचर वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करना है? हमने डेबिट करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 100 इंटू 4, 400। जो अमाउंट नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आई, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट कौन सा है? 6.50 है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेते हैं, तो 100 इंटू 6.50 650। फर्स्ट कॉल नहीं आई, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 100 इंटू 2 200। फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल 100 इंटू 2 200, और जो अमाउंट रिसीव हो चुका है वो फॉरफीचर भी। तो कौन सा अमाउंट रिसीव हुआ है?
ओनली एप्लीकेशन, तो फॉर फीचर में क्या आ जाएगा, टू शेयर फॉर फीचर 100 इंटू 3.50 350। तो इस प्रकार हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डील करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि प्रीमियम नहीं आया तो प्रीमियम को डेबिट करना है। अब देखो स्टूडेंट, सेकंड केस, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम बट प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, शेयर्स 100, एप्लीकेशन 3.50, अलॉटमेंट 6.50, उसमें 2.50 कैपिटल है और प्रीमियम कितना है, 4 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़। शेयर होल्डर फेल टू मेक पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब देखो बेटा, ये शेयर्स किस पे इशू हैं, प्रीमियम पे इशू हैं। उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को पे नहीं किया, डायरेक्टर्स ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो अब देखो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। फुली कॉल्ड अप है तो पूरा 10 रुपीज़ जाएगा, तो 100 इंटू 10,000। उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, वो अलॉटमेंट पे कर चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है, तो इसका मतलब वो प्रीमियम पे कर चुका है। प्रीमियम पे कर चुका है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को अब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसको हमने कैंसिल नहीं करना। अब हमने फर्स्ट कॉल से स्टार्ट करना है। फर्स्ट कॉल नहीं आई तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 100 इंटू 2 200, टू शेयर फाइनल कॉल 100 इंटू 2 200 और टू शेयर फॉर फीचर। लिसन बेटे, फॉर फीचर में भी कभी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं जाता, तो सिर्फ फेस वैल्यू कैपिटल वाला अमाउंट जाएगा। तो कैपिटल कितना है, यानी कि एप्लीकेशन 3.50 और 2.50 6 रुपीज़, तो फॉर फीचर में कितना जाएगा, 6 रुपीज़। तो ये कौन सा एग्जाम्पल था, जब शेयर्स इशूड एट प्रीमियम बट सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो फॉर फीचर की एंट्री कैसे होगी। अब बेटा, डायरेक्टर्स के पास परमिशन होती है कि फॉरफिटेड शेयर्स को वो री इशू भी कर सकते हैं। अगर वो शेयर्स री इशू कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें, yes students, directors have the authority to reissue the forfeited shares on such term as they think fit. That is to say that they are at a liberty to reissue the forfeited shares at par, at premium or at discount. So now we discuss the entries related to reissue of forfeited shares. Number 1 case, reissued at par. At par तो हमारी सिंपल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे हमारा कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ओपन नहीं होना, वो जब कंपनी फ्रेश इशू करती है तब। लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स को जब री इशू करते हैं तो सीधा शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। अब री इशू कर रहे हैं तो कैपिटल इंक्रीज होगी, अगेन क्रेडिट। सेकंड केस, री इशूड एट प्रीमियम, यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा पर री इशू कर रही है। इसको हम क्लियर सम्स की हेल्प से ज़्यादा करेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं कि एट पार है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एट प्रीमियम है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। थर्ड केस है री इशूड एट डिस्काउंट। द फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। इफ द शेयर्स आर री इशूड एट डिस्काउंट, the amount of discount cannot exceed the amount previously received on these shares. Listen बेटे, एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कंपनी इन शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू कर रही है, फ्रेश इशू तो डिस्काउंट पे नहीं कर सकते लेकिन री इशू डिस्काउंट पे कर सकते हैं, मीन्स लेस पे कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट जितना हमें उस शेयर होल्डर से रिसीव हुआ है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन विच ₹3 हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड इज़ फॉरफिटेड। कहते हैं एक शेयर जैसे ₹10 का है, उसके ऊपर कंपनी को ₹3 रिसीव हो चुके हैं, इज़ फॉरफिटेड, फॉरफिट हो चुका है। अब रीइशू कर रहे हैं
तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? 3 रुपये डिस्काउंट दे सकती है, इससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकती। मीन्स डिस्काउंट कैन बी अलाउड द मैक्सिमम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस शेयर होल्डर। प्रीवियस शेयर होल्डर से कंपनी को कितना मिला है? 3 रुपये। तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो कितना दे सकती है री इशू के टाइम? 3 रुपीज़। यानी कि 10 रुपीज़ का शेयर है, 3 रुपीज़ वो डिस्काउंट देगी, तो उसने कम से कम 7 रुपीज़ तो री इशू के टाइम लेने ही लेने हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी री इशू की? डिस्काउंट वाले केस में बैंक अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं करते, डिस्काउंट का मतलब लेस है, लॉस है। तो इन्हीं शेयर्स को फॉरफिट करने पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था ना, तो ये लॉस उसी प्रॉफिट में से ही कवर अप किया जाएगा। तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं करना। अगर कंपनी डिस्काउंट पे रीइशू करती है तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होता है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अगर शेयर्स रीइशू हो गए हैं तो जो फॉर फ्यूचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है। तो कैपिटल प्रॉफिट, अगर कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है, तो ये कंपल्शन होती है कि सारे कैपिटल गेन, सारे कैपिटल प्रॉफिट कंपनी के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए जाएंगे एंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। और हमारी एंट्री क्या बनेगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इट इज़ कंपल्शन फॉर अ कंपनी टू ट्रांसफर ऑल कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। One thing more, it should be noted that if all forfeited shares are not reissued, only proportion some shares are reissued, then forfeiture account belongs to that reissued share be transferred to capital reserve। जितने शेयर्स को रीइशू किया उतने शेयर्स का ही कैपिटल रिजर्व में अकाउंट क्लोज, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्लोज किया जाएगा। Yes student, for more understanding of this topic, we will start 25th practical. Let's start. X Limited was registered with an authorized capital of 2 lakh shares of rupees 10 each. Authorized capital, इससे कोई लिंक नहीं होता, ये कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है, ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है। आगे नेक्स्ट, इट परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर रुपीज़ 3 लाख एंड इशूड फुली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। देखो यहाँ तक का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसकी मैं सिर्फ तुम्हें जनरली ओरल एंट्रीज बता देती हूँ। पहले एसेट्स परचेज करने की एंट्री होगी और हमारी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। इस एंट्री को मैं ओरली बता रही हूँ, रिटर्न में नहीं बताऊँगी। तो पहली एंट्री हो जाएगी एसेट्स परचेज करने की। अगर मेंशन ना हो, डिटेल ना दे रखी हो, तो हम सन्ड्री एसेट्स अकाउंट ओपन करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। फिर वाई लिमिटेड को, वेंडर को कंपनी ने क्या किए हैं? शेयर्स इशू किए हैं 3 लाख रुपीज़ के। तो सेकेंड एंट्री होगी हमारी वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख। ये 2 एंट्रीज हो गई। उसके बाद आगे, It also invited applications for 1,20,000 shares payable as under। 1,20,000 shares उन्होंने पब्लिक को इन्वाइट किया है, मीन्स फॉर कैश। रुपीज़ 2.50 एप्लीकेशन, 2.50 अलॉटमेंट, रुपीज़ 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड रुपीज़ 3 ऑन फाइनल कॉल। Amount due on allotment and first call was duly received. However, rupees 3,58,800 were received on final call. Directors forfeited the shares of defaulting shareholders and reissued them at 8.50 per share as fully paid up. Pass entries in the cash book and journal. Listen students, अगर हमें सम के अंदर कैश बुक बनाने को कहा जाता है तो बैंक वाली जर्नल एंट्रीज सारी कैश बुक में जाती हैं, जर्नल में उनको पास नहीं किया जाता। शॉर्ट में एक बार फिर सम की स्टेटमेंट, 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, application 2.5, allotment 2.5, first call 2 rupees and final call ₹3. On final call ₹3,58,800 received. Directors forfeited and reissued at ₹8.50 per share as fully paid up. Lesson, सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं
तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन अगर हमारी कैश बुक बनती है तो फिर बैंक वाली सारी ट्रांजेक्शन कहाँ जाती हैं, कैश बुक में। तो पहली हमारी एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 1,20,000 शेयर्स पे 2.50 के अकॉर्डिंग। तो 1,20,000 इंटू 2.50 3 लाख। तो ये कहाँ जाएगा, टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, क्योंकि ये जनरल में पास नहीं होगा। हमारी वैसे एंट्री तो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आ रहा है तो कैश बुक में डेबिट, अगर गोइंग आउट है तो कैश बुक में क्रेडिट। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 3 लाख 3 लाख 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, 1,20,000 शेयर्स पे 1,20,000 शेयर्स इंटू 2.50, तो कितना अमाउंट बनेगा, 3 लाख। ये हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की है। उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन कैश बुक बन रही है तो ये हमारी ट्रांजैक्शन भी कहाँ जाएगी बच्चे, कैश बुक में डेबिट साइड। और यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है तो टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल हमारे सम के अंदर गिवन है, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की हमारी एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 1,20,000 इंटू 2,40,000 2,40,000। अब हम ये हमारी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की है, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इनको रिसीव करने की एंट्री करेंगे तो कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है, फुली अमाउंट रिसीव हुआ है और ये कैश बुक में कहाँ जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000। अब उसके बाद हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो फाइनल कॉल ड्यू करने की हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 3,60,000 एंड 3,60,000। लेकिन हमें सम के अंदर क्लियर मेंशन किया गया है कि हमें कितना रिसीव हुआ है, 3,58,800 रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। तो हमें ये अमाउंट रिसीव हुआ है, तो हम कैश बुक में फाइनल कॉल का कितना लिखेंगे, 3,58,800। तो टू शेयर फाइनल कॉल 3,58,800। आप यहाँ पे इसको एंड भी कर सकते हो इस एंट्री का, या कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना चाहो तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट जब ओपन होता है तो डेबिट करते हैं, तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बेटे हमने 3,60,000 ड्यू किया था, 3,60,000 ड्यू किया था, लेकिन हमें मिले कितने हैं, 3,58,800 मिले हैं। तो डिफरेंस 1,200 हमें नहीं मिला, रुपीज़ 1,200 नहीं मिला फाइनल कॉल के। और फाइनल कॉल पर शेयर है कितनी, पर शेयर है रुपीज़ हमारी 3। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए इस 1,200 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 1,200 डिवाइडेड बाय 3 400 शेयर्स, इसका मतलब 400 शेयर्स पे नहीं आई। और कॉल्स इन एरियर अकाउंट एज यू विश, अगर आप करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो इसको ना भी पास करो, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए कहा है तो तुम्हें ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। और हमारी क्या एंट्री बनेगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,200 एंड 1,200। उसके बाद डायरेक्टर्स ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। फॉरफीचर की एंट्री, तो फॉरफिटेड शेयर्स हैं हमारे 400 और इनका कॉल्ड अप अमाउंट फुली कॉल्ड अप है 10 रुपीज़। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 फॉरफिटेड शेयर इंटू कॉल्ड अप अमाउंट 400 इंटू 10। अब बेटा हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया था 1,200, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ही क्लोज करेंगे। तो टू कॉल्स इन एरियर 1,200। अगर बाय द वे हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर की एंट्री पास ना करते, ये ना लिखते, तो हम कॉल्स इन एरियर की जगह पे क्या लिखते, टू शेयर फाइनल कॉल। बट अब हमने सम के अंदर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया तो उसी को क्लोज करेंगे। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते, ये एंट्री पास ना करते, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, टू शेयर फाइनल कॉल 1,200 और टू शेयर फॉर फीचर 2,800, जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका है। उसके बाद रीइशू करने की एंट्री, रीइशू हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, रीइशूड एट ₹8.50 एट, लिसन बेटे, एट वाला अमाउंट बैंक में जाता है और जितना पेड अप हो वो कैपिटल में,
फॉर या एट वाला अमाउंट बैंक में, और जितना पेड अप हो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। तो यहाँ पे एट 8.50, तो 400 इंटू 8.50 3400, ये अमाउंट तो हमारा कैश बुक में जाएगा। हमारी वैसे जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जनरल ऐसी एंट्री बनेगी। लेकिन कैश बुक बना रहे हैं तो कैश वाली सारी एंट्रीज कहाँ जाएंगी, कैश बुक में, तो बैंक अकाउंट तो कट हो जाएगा। तो बैंक में कितना आना है, 8.50, 400 इंटू 8.50, वो तो हमारा बैंक में आएगा। देखो बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम, टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 8.50 3400, और उसके बाद एज फुली पेड मीन्स एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का है। इसका मतलब कैपिटल में कितना जाएगा, 10 रुपीज़। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, तो वो तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट करना नहीं है, कैश बुक में लिखा। लेकिन कैपिटल में कितना है, कैपिटल में हमारा जाना है 4000, तो हमने 600 कहाँ से लेने हैं, फॉर फीचर से। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 600, क्योंकि जितने बैंक में आए हैं वो तो हमने कैपिटल में लिख दिए, जितने हमारे पास बैंक में आए वो तो कैपिटल के लिख दिए, बाकी 600 हमारे पास लेस आ रहे हैं, तो वो हम किस अकाउंट से चार्ज करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 600। अब बेटा अगर शेयर्स रीइशू हो जाएँ तो फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्लोज करते हैं, और फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्लोज करते टाइम ही हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। ये सारे कैपिटल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो हम बैलेंस अमाउंट, लिसन, बैलेंस कितना है हमारे पास, फॉर फ्यूचर में कितना था, 2800 था। ये देखो फॉर फ्यूचर वाली एंट्री में जब फॉरफिट किए थे 2800 है। 2800 में से हमने 600 फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, अब रिमेनिंग कितना बचा, 2200। तो 2200 से हम फॉर फ्यूचर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे और ये अकाउंट क्लोज करेंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2200। Yes students, now start with 26 practical. Company issued 5000 shares at the rate of ₹100 each. Application ₹25, allotment ₹25, first call ₹20 and final call ₹30. Yes students, now we start 26 practical. Alpha Limited issued 5000 shares of ₹100 each at par. Amount payable was as under: ₹25 on application, 25 on allotment, 20 on first call and ₹30 on final call. The company didn't make final call. कंपनी ने फाइनल कॉल अभी तक नहीं कॉल की है, मांगी नहीं है. X, a holder of 100 share, failed to pay allotment and first call money. Director forfeited his shares and immediately reissued the forfeited shares at ₹6500. Lesson: 5000 shares है, 100 रुपीज़ का ये, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल 30. शेयर्स 100 हैं, उनके ऊपर कौन कौन से अमाउंट नहीं आया, अलॉटमेंट के 25, तो 100 इंटू 2500 अलॉटमेंट पे नहीं आए, और फर्स्ट कॉल के भी 20 रुपीज़ नहीं आए, तो 100 इंटू 22,000 फर्स्ट कॉल के नहीं आए. इनको डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर दिया और फिर रीइशू किया है एट ₹6500 पे. लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5000 शेयर्स पे 5000 इंटू 25, 1,25,000, 1,25,000. सेकेंड एंट्री, इस शेयर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम, कैपिटल में, तो नेक्स्ट एंट्री कर जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,25,000 एंड 1,25,000 फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल. फिर उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो वो कितनी ड्यू होगी हमारी, 5000 शेयर्स पे 25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,25,000 एंड 1,25,000. अब रिसीव करने की एंट्री करेंगे, तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. बेटे हमने एक छोटी सी टेबल बना के निकाला था कि 100 शेयर्स पे 25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2500 अलॉटमेंट के नहीं आए,
तो बैंक वाली एंट्री में इस अमाउंट को माइनस करके लिखेंगे। यानी कि 5000 शेयर्स पे हमारे पास 100 रुपीज़ के ऊपर अलॉटमेंट मनी नहीं आई, 4900 शेयर्स पे आई है। तो या तो ऐसे कर लो 4900 इंटू 25, या जो ड्यू किया मनी उसमें से 2500 माइनस करके लिख दो। तो हमने ड्यू कितनी की है, हमने 1,25,000 ड्यू की है, लेकिन उसमें से हमारे पास 2500 नहीं आए, तो 1,25,000 माइनस 2500, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,22,500, 1,22,500। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल मनी पूरी ड्यू होगी, हमारी क्या एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5000 शेयर्स पे, 5000 शेयर्स पे 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट बनेगा, 1 लाख 1 लाख। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन बेटा हमारे पास 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़, 2000 नहीं आया, तो बैंक वाली एंट्री में इसको हम माइनस करके लिखेंगे। अगर कॉल सीनियर अकाउंट ओपन करना है तो डेबिट कर दो, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 98,000। उसके बाद 98,000 रिसीव कर लिया। अब डायरेक्टर्स ने उनको फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किया है, क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही हम इनको फॉरफिट करेंगे। तो देखो हमारी क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया है उनसे, कंपनी ने कॉल कितना अमाउंट किया है, कंपनी ने देखो 25, 25 एंड 20 यहाँ तक कॉल किया है, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 70। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में 100 इंटू 70 7000। अलॉटमेंट के 2500 नहीं आए, 100 इंटू 25 टू शेयर अलॉटमेंट 2500। फर्स्ट कॉल के 2000 नहीं आए, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2000। और जो अमाउंट आ चुका है, कौन सा अमाउंट आया है, सिर्फ एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन कितनी है 25 रुपीज़, तो टू शेयर फॉर फीचर 2500। मेन तुम्हारे लिए ये न्यू एंट्री है। इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। तो कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक मांगा है, तो कॉल्ड अप कितना है 70, 100 इंटू 70 7000। अलॉटमेंट के 25 रुपीज़ नहीं आए, तो टू शेयर अलॉटमेंट 2500, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2000 एंड टू शेयर फॉर फीचर 2500, जो अमाउंट रिसीव हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, reissued at ₹6500 as full, nothing is given paid। तो बेटा एट वाला अमाउंट बैंक में आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6500। हमें सम के अंदर नहीं बताया कितना पेड है, अगर ये ना बता रखा हो कि कितना पेड है, तो फॉर फीचर में जितने पर शेयर से कैपिटल डेबिट है उतने से ही क्रेडिट होगी। तो देखो फॉर फीचर में 70 रुपीज़ पर शेयर से डेबिट है, 100 इंटू 70 रुपीज़ पर शेयर है, जितने अमाउंट से कैपिटल डेबिट है री इशू में उतनी ही क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, टू शेयर कैपिटल 7000, यानी कि 7000 वाली चीज़, 7000 वाले फेस वैल्यू के शेयर्स, उनकी नॉमिनल वैल्यू 7000 है, लेकिन कंपनी कितने रिसीव कर रही है 6500, तो 500 लेस है। इसका मतलब ये इशू किस पे है, डिस्काउंट पे है। अगर डिस्काउंट पे इशू होते हैं तो हम किस अकाउंट से चार्ज करते हैं, फॉर फीचर अकाउंट से। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 500 वहाँ से चार्ज करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 6500, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 500, टू शेयर कैपिटल 7000। अब हमारी क्या कंडीशन है, अगर फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो जाएं तो हमने शेयर फॉर फीचर अकाउंट को क्लोज करना है। हमारे शेयर फॉर फीचर अकाउंट की क्रेडिट में कितनी है 2500 है, लेकिन उसमें से शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितना हो गया 500 हो गया। अब हमारे पास फॉर फीचर में कितना अमाउंट पड़ा है 2000 है, तो 2000 से शेयर फॉर फीचर अकाउंट को अब हमने क्लोज करना है। और शेयर फॉर फीचर अकाउंट को क्लोज करके कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2500 माइनस 500 2000। दैट्स ऑल अबाउट this 26th practical।